Okay, can I start now? Are you there, children? Good morning. Yes, sir. Okay, next chapter is seventh chapter, alternating current. Previously, what we have seen is DC current, direct current or constant current of battery. ये generator का current है. Yesterday we have seen induced EMF in the generator, which is alternately changing its direction every after half rotation. Direction of current is reversed, and इसका magnitude भी continuously change हो रहा है. You see, it is going up to the peak value and then coming back. यहाँ से देखिए peak value, coming back and then again, then negative and then zero. So whose magnitude is changes continuously and polarity reverses periodically. प्लस माइनस हो रहा है, देखो प्लस माइनस. जो टर्मिनल जो एंड प्लस था वो माइनस हो गया हाफ रोटेशन के बाद, एंड वाइस वर्सा. तो दिस करंट हैज गॉट its advantages, many advantages. First of one of them is, main advantage is it can be trans, its magnitude can be changed easily. Even it, whatever generator is producing, suppose generator is producing 200 volt, but it can be converted into 20,000 volt by using the device called transformer, or it can be brought down to the 10 volt with the help of transformer, which we call it charger in case of mobile. 220 volt को less than 10 volt पे आता है वो, and then it is converted into DC with the help of rectifier, and then we can charge it. This is the disadvantage, that it is AC. The disadvantage, its disadvantage is this: we cannot use in the charging, for the charging or electrolysis process. There we need the DC current. तो इसको ट्रांसफार्मर में, आई मीन चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर भी होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है. वोल्टेज तो हम ड्रॉप करा लेते हैं with the help of transformer. That is the advantage. But DC cannot be used for mobile charging or even TV or music system. अंदर उसमें लगे रहते हैं rectifier that converts into the DC. ठीक है, तो एडवांटेज है कि वो कन्वर्ट हो जाता है इजीली. वोल्टेज भी चेंज करा लेते हैं. वोल्टेज चेंज कराना इजी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. वेयर एज जो बैटरी का वोल्टेज है, दैट इज डिफिकल्ट टू हैव कंटिन्यूअस लार्ज वोल्टेज. ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूअस लार्ज वोल्टेज रहेगा आपको, जैसे जैसे एसी चेंज होता है वैसे वैसे चेंज होगा. बट वी कैन, प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कि वी कैन ऑटोमोबाइल में 12 वोल्ट की बैटरी से वी आर गेटिंग 12,000 volt. That momentarily, when we break the circuit, that's all. That time it will be 12,000, and or we make the circuit or break the circuit momentarily for fraction of second. But here continuously large voltage can be maintained with the help of transformers. ठीक है, तो large या small दोनों कर सकते हैं. It can be easily brought down or brought up with the help of transformer, and same pattern we can receive output. All right. तो पावर ट्रांसमिशन में क्यों, व्हाई डू वी इंक्रीज द वोल्टेज? एसी का वोल्टेज इंक्रीज करके ट्रांसमिट कर देते हैं. दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लार्ज डिस्टेंसेस. हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन विल इनकर लेस लॉसेस, कम लॉसेस होते हैं उसमें. गेटिंग? तो अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है घर में जो सप्लाई आ रही है, दैट वन. ऑफिसेज, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ऑल अल्टरनेटिंग करंट which can be easily transported from one place to other place at high voltage, due to which losses will be less. ठीक है. Now AC, साइनोसॉइडल AC की इक्वेशन क्या होगी?
कल हमने ईएमएफ की इक्वेशन लिखी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली करंट लिख सकते आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते तो करंट बन जाएगा। यस, तो इक्वेशन ऑफ करंट विल बी, इफ आई एम इज द मैक्सिमम करंट, कभी कभी आई नॉट भी लिखते हैं इसको, बोथ आर सेम, एनसीईआरटी बुक सिंबल वी आर फॉलोइंग। मैक्सिमम करंट ये वाली वैल्यू, then current at any instant is given by I is equal to Im sin omega t. Okay, if this equation is sometimes may be taught to you like this, both are same, I is equal to I naught sin omega t. Here I will be current at any instant, instantaneous current है ये। Im peak current है, ओमेगा क्या है, constant angular frequency और angular speed भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे frequency we call it, है ना। Angular speed also we can call it, but here we call it angular frequency. जो जनरेटर की रहेगी ना फ्रीक्वेंसी, f with the frequency, जनरेटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है पर सेकेंड, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, दैट इज एंगुलर स्पीड ऑफ जनरेटर, और उसको यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सम टाइम इट इज गिवन इन आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट। We have to divide by 60, it converts into hertz. Unit of frequency is hertz also, or revolution per second also. Frequency का symbol nu is written in NCERT book, but we are writing f. ठीक है, nu looks like v, therefore confusion होता है। We will continue to write f only for frequency. T is the time period. Time period का frequency के साथ क्या relation होता है, 1 by f. ठीक है, getting these points? तो करंट की क्वेश्चन समझ में आ गई आपको। आई क्या है, व्हाट इज आई? आई द इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट एनी इंस्टेंट लिखा है ना, नीचे लिख दूं यहाँ पर, आई द इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, आर दे देयर और नॉट? यस सर। तो ओके, तो ये करंट की इक्वेशन हो गई, टर्म समझ में आ गए सारे आपको। और सिमिलरली ईएमएफ की इक्वेशन, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने ईएमएफ की इक्वेशन, ओके देयर इज सम इशू। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ईएमएफ की इक्वेशन ऐसे डिराइव की थी, यहाँ पे उन्होंने सिंबल वी ले लिया, तो हम वी ले सकते हैं। बोथ यू कैन फॉलो दिस आल्सो और वी आल्सो। इन दिस चैप्टर दे आर राइटिंग वी, therefore I am changing it to V. VM is the maximum voltage, सेम ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ पे VM हो जाएगा। Here we'll write V. Already derivation done, ये derivation कल किया था हम लोगों ने। If they ask you do the derivation EMF, then it will be the case of generator, इसका derivation already done है। करंट का हम देखेंगे, रेजिस्टेंस के साथ R से डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। कैपेसिटर है तो क्या करना पड़ेगा, करंट की इक्वेशन थोड़ी इसमें चेंज हो जाएगी, सेम टर्म तो रहेंगे, फेज डिफरेंस भी आता है कैपेसिटर में, प्लस माइनस 5 भी आ जाएगा इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखी हुई है, इसको आर से डिवाइड कर दो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ओम्स लॉ से। ऑलराइट, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपिटल ई लिखो या स्मॉल ई लिखो, और यू राइट वी, ऑल थ्री आर सेम। ऑलराइट, other terms remaining same, ये peak value omega is the angular speed or angular frequency, जिस स्पीड से जनरेटर रोटेट करता है, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से,
एंगुलर स्पीड से वही एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई? अल्टरनेटिंग करंट इज एसी करंट जिसकी मैग्नीट्यूड कर लगातार चेंज होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, इधर प्लस है इधर माइनस है, बिकॉज एवरी आफ्टर हाफ टर्न साइड विच वाज गोइंग अप विल कम डाउन। जनरेटर में कल देखा था हम लोगों ने, जो रोटेशन से वन साइड गोज अप अदर साइड गोज डाउन, तो एवरी हाफ साइकिल में वही साइड दूसरी तरफ आ जाती है। वंस इट वाज गोइंग अप इट इज गोइंग डाउन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले प्लस है तो बाद में माइनस हो जाएगा, या पहले माइनस है तो बाद में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ एसी गोज। नाउ ये क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन कहीं पढ़ी है आप लोगों ने? हैव यू सीन सिमिलर क्वेश्चन समवेयर इन द प्रीवियस चैप्टर्स? था कहीं पर ऐसा कुछ? ऐसा कहीं पढ़ा है? एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कौन से चैप्टर में पढ़ा हमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। या एसएचएम में एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ए द एम्पलीट्यूड, है ना, और पार्टिकल, उसकी इक्वेशन भी, उसका ग्राफ भी ऐसे आता है। तो यहाँ पर करंट इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, ऑसिलेट कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स। क्या होता है देखो, ये कंडक्टर है, चार्जेस इधर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टैप साइकिल में वापस आ रहे कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से, ऑसिलेट कर रहे हैं वहां पर, है ना, एंड मेकिंग एसी। तो इट इज सिमिलर टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन में किए थे हमने, यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं सेम क्वेश्चन। बोलिए क्या आंसर होगा फर्स्ट का? फाइंड peak current and frequency in following cases. What is the answer for the first? इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करके निकालते कि नहीं निकालते? तो ये पीक करंट हो जाएगा, पीक करंट विल बी Im विल बी 10 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलिए? हाउ मच विल बी द फ्रीक्वेंसी? थ्री वन फोर अपॉन टू 314/2 पाई। उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ मच वी आर गेटिंग इट? तो 50 ओमेगा इज कमिंग, या ओमेगा इज कमिंग, यहाँ से कंपेयर करो, ओमेगा जो है ये 314 हो जाएगी, and omega is 314. Omega is also 2 pi f. If you simplify it, f की वैल्यू 3.14 होती है। 314 को जब डिवाइड करेंगे 100 और 2 से भी डिवाइड करेंगे तो f विल बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन करिए होमवर्क में, दोनों। अदर 2 parts you have to do it in homework. ऑलराइट, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक ओके? आर एनी डिफिकल्टी हियर? डन?
Okay. Now, in this chapter, we are going to come across the sine or cosine function or sine square, omega t or their square also. तो उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है. I mean, what we call it is average value of some trigonometrical function for one time period, 0 से लेकर t तक. सपोज ये साइन फंक्शन है वन टाइम पीरियड के लिए. वन टाइम पीरियड कितना होगा? 0 to t. ठीक है, हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है. तो मैथमेटिकली हाउ डू वी राइट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t sin omega t dt. That's how we write for average value of certain function. क्योंकि उसको हमने देखो साइन को हमने यहाँ से टाइम से मल्टीप्लाई किया, इसलिए डिवाइड भी करेंगे, टाइम का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, साइन की ही वैल्यू बचेगी कहाँ से? 0 से t तक. तो ऊपर भी t की डायमेंशन आएंगे, नीचे भी. बट वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रिग्नोमेट्रिकल एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. तो बैलेंस हो जाएगा. तो बट इन एनसीईआरटी बुक दे राइट लाइक दिस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, मतलब दिस सिंबल्स इंक्लूड इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाय t आल्सो. इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक है इसमें, और डिवीजन ऑफ t इज आल्सो देयर. मतलब इसमें t है ही नहीं इनफैक्ट, बट मीनिंग सेम है. मीनिंग सेम है. तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड इज 0. यू कैन जस्टिफाई बाय द ग्राफ आल्सो. हाफ टाइम पीरियड में प्लस है, नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में माइनस है. तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन में क्या है? एरिया ही तो होता है. इंटीग्रेशन में वी आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज दैट गिव्स द एरिया. टू क्वांटिटी कौन सी है? साइन है यहाँ पर, और एक्स एक्सिस पे टाइम है. तो वी आर डीलिंग इन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया दिस वन प्लस दिस वन, हाफ इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. ऑलराइट. तो साइन फंक्शन एंड सेम विल बी फॉर कोसाइन फंक्शन आल्सो. कोसाइन फंक्शन की भी 0 होती वैल्यू, बिकॉज कोसाइन फंक्शन ऐसे आएगा, दिस इज द क्वार्टर लूप, ऐसे ये क्वार्टर और ये क्वार्टर प्लस है और ये हाफ माइनस है, तो 0 हो जाएगा, है ना. इसकी भी 0 हो जाएगी. बट व्हाट अबाउट स्क्वायर फंक्शन? स्क्वायर फंक्शन विल बी हाफ. कैसे हाफ होगा? या इसका देख लेते, चलो दोनों का हाफ होगा. साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी हाफ, cos square omega t का भी half. You write it like this or you write it like this, both are same. NCERT book में ऐसे लिखे हुए हैं, but sometimes we are going to write like this also. तो स्क्वायर फंक्शन का हाफ कैसे होगा? इसका देख लेते. देखो, we know formula cos 2 theta is equal to 1 minus sin square theta. वो फार्मूला लगा के हमने ये रिलेशन लिखा, यहाँ से sin square theta की वैल्यू मिल गई, है ना. और 2 को भी, ये जो 2 था 2 को भी हमने इधर भेज दिया, इसको इधर लाए, इसको इधर ले आए, और 2 को डिनोमिनेटर में भेज दिया. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मिली हाफ माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी. ये तो सिंगल पावर है, इसका तो अगेन ऐसे ही आएगा, 0 हो जाएगा इसका. साइन की जो सिंगल पावर होगी 1, कॉस की 1, यहाँ पे ओमेगा 2 हो सकता है, ओमेगा टी हो सकता है, 2 ओमेगा टी हो सकता है, both will be taken as a theta only. तो it is going to be 0, but half जो है it is constant, its average value will be half only. कोई constant है, उसकी average value will remain same, no change. Getting this point? तो therefore sin square omega t इसकी वैल्यू और cos की भी वैल्यू सेम आएगी. सेम वे cos फंक्शन की भी वैल्यू आ जाएगी हाफ स्क्वायर फंक्शन की. दोनों के स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू हाफ है, बट सिंगल पावर फंक्शन की वैल्यू 0 है. ठीक है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज इसको हम सेपरेट प्रूव करके नहीं देखें. यू कैन डू इट आल्सो, प्रूव भी कर सकते. कैसे कर सकते हैं प्रूव? देखो, साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? साइन का माइनस कॉस, है ना. माइनस कॉस पुट कर दो, फिर लिमिट लगा दो 0 to t, ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दो 2 पाई बाई टी,
और लिमिट में टी आ जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा ना। तो लाइक दिस यू विल बी लेफ्ट विद 2 पाई और पाई समथिंग, उनकी वैल्यू पता होती है, मैं साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज -1, है ना। तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू द 0 इफ you are aware of the integration of these functions. तो उससे भी कर सकते प्रूव, बट वी डोंट नो टू डू इट। मोमेंट यू गेट दिस और यू गेट दिस और यू गेट दिस, टू राइट डायरेक्ट दी वैल्यू, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे हाफ लिखो, ठीक है। दैट्स हाउ आवर टेक्स्ट बुक इज डूइंग, सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रेशन। ज्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं वहां पर। Clear? So this is given in your textbook. You can use it directly. All right, now this is okay. देखो यहाँ पर देखो, ओमेगा is 2 pi by t. Value of omega t will be 2 pi. जहाँ पे ओमेगा t है, ओमेगा कैपिटल t, लिमिट जब लगाएंगे ना ये, तो स्मॉल t will convert into capital T. And wherever omega t is there, where we can replace by 2 pi. Omega into capital T, I am telling. Okay, now we'll see further. Let's see what is next. Average value of current, पूछते sometimes they will ask you, find out the average value of current in AC or in any, for any type of alternating current. हम लोग कौन सा करंट निकाल रहे हैं, ये कौन से करंट की बात हो रही है? दिस इज कॉल्ड साइनोसाइडल करंट। वापस चलते हैं, वी आर डीलिंग विद द, हाँ यहाँ पे लिखा है देखो, साइनोसाइडल AC, which can be represented by sine function or cos function. तो in our textbook only sinusoidal AC is there, है ना। कुछ रेक्टेंगुलर AC भी हो सकते हैं ऐसे, ट्रायंगुलर AC भी हो सकते हैं ऐसे, but in our course only sinusoidal ACs are there. So we will find out its average value and also its other values, RMS values निकालेंगे करंट की। तो पहले हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। तो किसी भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय दिस। सपोज एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा ग्राफ जा रहा है ना। तो टाइम स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इंटीग्रेट कर दो T1 to T2, तो ये उसका, और उसको बाद में हम टाइम से डिवाइड, टाइम इंटरवल से डिवाइड भी करते हैं। जो लिमिट से हम जो लिमिट्स ले रहे हैं वो नीचे डिवाइड भी करना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x into dt लिमिट T1 to T2 डिवाइड बाय T2 minus T1। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अगर इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट, तो यू कैन जस्ट गेट रेड ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे होता ट्रायंगल शेप में, तो एरिया निकाल लेते हैं हम इजीली, फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। देयरफॉर एरिया अंडर xt ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल फॉर विच वी नीड द एवरेज वैल्यू। इंटरवल हमने T2 minus T1 के लिए एवरेज वैल्यू चाहिए, तो दैट क्वांटिटी एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइड बाय T2 minus T1। तो यहाँ पे ये जनरल फार्मूला होगा। यहाँ पर वेलोसिटी हो सकती है, v लिख सकते, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी। एक्सेलरेशन लिखा तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर करंट लिखेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। तो नाउ वी आर डीलिंग फॉर द करंट के लिए लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए, एवरेज करंट इट द रेशियो ऑफ, अच्छा एवरेज करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज अपॉन टाइम। ऑलराइट,
It is a charge upon time, and for variable conditions, we have to use integration or area. Find area under the IT graph. तो एरिया निकालो या इंटीग्रेशन कर लो, तो क्या है Q अपॉन T बन गया, और एवरेज करंट की डेफिनेशन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी वी नो दिस. तो चार्ज इज नथिंग बट IDT. ये फार्मूला याद है, I is equal to dq by dt. तो dq is IDT. दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो इधर, टोटल चार्ज मिल जाएगा IDT डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. कहां से कहां तक? T1 to T2, जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए. तो एरिया, दिस विल बी, integration is always giving you the area of product, area of that two physical quantities, product of that two physical quantities. यहाँ पे एक करंट है, एक टाइम में. तो IT ग्राफ ड्रा करो तो एरिया मिल जाएगा ये. Are you getting this point? Average current is nothing but a charge upon time. चार्ज निकालने के लिए IT ग्राफ का एरिया निकालो या इंटीग्रेशन कर लो, दोनों एक ही बात है. डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर विच वी नीड द एवरेज करंट. तो ये ग्राफ एक जनरल फार्मूला सीखा हमने अभी, है ना. तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट निकालनी है. तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट निकालनी है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज साइन का एरिया निकालना मुश्किल होता है, ये एरिया निकालना मुश्किल होता है. तो वी हैव टू फॉलो दिस वन. क्या सीखा अभी तक हमने? करंट को डिफाइन किया. कौन से करंट पढ़ रहे हैं हम लोग? एसी करंट. एसी में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? साइनोसॉइडल, which is represented by sin function और cos function. जनरेटर जब रोटेट कर रहा है एक फिक्स आरपीएम से, तो हमें साइन का वोल्टेज देना, साइनोसॉइडल वोल्टेज, उससे साइनोसॉइडल करंट बना, which we are calling it AC. उसका अभी हम एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं. तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए we will find out the average value for half cycle. 0 to t निकालेंगे, नहीं 0 to t by 2, फिर 0 to t निकालेंगे. 0 to t तो हमें पता है कितना आने वाला है, इसका पता नहीं कितना आने वाला. t by 2 तक कितना आएगा वी डोंट नो, बट 0 to t कितने आएगा एवरेज करंट? Do we know how much average current we are going to get for one complete cycle for sinusoidal AC? देखते चलो कितना आ रहा है. Now, average value of sinusoidal AC current for half cycle, half time period. तो फार्मूला वो ये वाला फार्मूला जो हमने डिस्कस किया. तो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? हाफ. t by 2 लिख देंगे. लिमिट 0 to t by 2. I dt, I की वैल्यू पुट कर देंगे. तो टाइम जो नीचे टाइम था उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, t2 by t. t2 minus t1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया t by 2. और ये t1 is 0, t2 is t by 2, I dt. ठीक है. I की वैल्यू पुट कर दो. करंट की इक्वेशन अभी हमने सीखी थी. इंस्टेंटेनियस करंट इज I m sin omega t. Peak current into sin omega t dt also. ठीक है. 0 to t by 2. ठीक है. साइन का इंटीग्रेशन cos और माइनस भी आता है उसमें, और जो वेरिएबल टाइम है t के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ ओमेगा, उससे डिवाइड करना पड़ता है बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको. जैसे कल हमने मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट को, दैट वाज डिफरेंशिएशन चेन रूल. ये सब्स्टिट्यूशन है. तो जो भी कांस्टेंट होगा वो डिनोमिनेटर में आता है इंटीग्रेशन में. ठीक है. ओमेगा डिनोमिनेटर में आ गया. और ठीक है, और इसकी लिमिट लगाएंगे. अभी स्मॉल टी को कैपिटल टी बाई 2 से रिप्लेस करेंगे. लोअर लिमिट इज 0, तो 0 से रिप्लेस कर देंगे टी को, तो ये cos 0 हो जाएगा. आई मीन यहाँ पर ओके. ओमेगा टी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ओमेगा टी कितना था? 2 पाई.
बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, या तो ओमेगा की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो या ओमेगा टी को इधर शिफ्ट करके पुट कर दो। तो ओमेगा टी इज 2 पाई, नहीं 2 पाई/t पुट कर दिया हमने सीधा, और इधर से टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखी हमने, ओमेगा इज 2 पाई/t, यहाँ पे पुट किया, कहाँ पे पुट किया, यहाँ पर। तो यहाँ से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई बचा और कॉस माइनस कॉस 0 है। कॉस पाई कितना होता है? -1। कॉस 0 इज +1, तो अंदर -1 बच गया, तो -2 हो जाएगा। और नीचे भी देखो, यहाँ पर जो ओमेगा था, ओके, ये टी एंड ओमेगा, यहाँ से देखो टी इंटू ओमेगा 2, ओके, टी की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा, और ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 ऊपर है, ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे पाई बचा और ऊपर आई एम बचा। कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, जनरली दे अवॉइड टू आस्क दिस, बट फिर भी यू शुड नो दिस, इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर देखो -2 हो जाएगा, और इधर माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 2 है और आई एम कहाँ चला गया, आई एम भी है, पीक करंट, तो 2 आई एम बाई पाई, ये आ गया एंड रिजल्ट। और 2 को अगर हम पाई से डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो इट कम्स क्लोज टू 0.63। तो एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज 0.63 times of peak current. So this is the end result हाफ साइकिल के लिए है। लेकिन ये यहाँ पे देखो, मैंने साइन का इंटीग्रेशन भी लिखा है, साइन AT A the constant, तो विल बी माइनस कॉस AT, और कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। कैन यू सी दिस? थोड़ा बड़ा कर दो इसको। तो व्हाट वी डिड, एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला यूज किया हमने। करंट का चाहिए तो यहाँ पे IDT आएगा, नीचे भी टाइम आ जाएगा, टाइम इंटरवल। आई का क्या किया हमने, आई का फंक्शन जो था इंस्टेंटेनियस करंट, आई आई एम साइन ओमेगा टी, पूरी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट्स भी लगा दी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 2 times ऑफ द पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई, इसको 2/पाई को भी सिंप्लीफाई कर लो, 0.63, मतलब पीक करंट का 63% होता है। लेकिन किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए बात हो रही है। ऊपर देखो हमने लिखा है हाफ साइकिल, और फुल साइकिल के लिए क्या होगा? फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 to t करनी पड़ेगी, बाकी सब सेम चलेगा। तो यहाँ पर 0 to t है, तो यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो t रहेगा, 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, तो ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती, तो ये 2 पाई आ जाएगी। यहाँ पे टी, यहाँ पे अगर पाई आया तभी 2 पाई, आई मीन 2 पाई आएगा, बिकॉज ये 2 नहीं रहेगा नीचे। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 होती, ये +1, ये -1, 0 हो जाएगा, तो एंड रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे टी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 पाई आएगा जिसकी वैल्यू +1 होगी, ये एज इट इज रहेगा। तो 1 साइकिल के लिए 0 आएगा, बिकॉज देखो यहाँ से जब हमने लिमिट लगा दी 0 से t, और सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये साइन फंक्शन का भी हम लोग पढ़ रहे थे, एवरेज वैल्यू, ये एनसीईआरटी बुक में दिया ही है ऐसा, यू कैन जस्ट टेक इट एज ए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। तो ये 0 ही हो गई, लिमिट लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको इंटू 0। तो वैसे भी देखो क्या होता है, हाफ साइकिल प्लस है, नेक्स्ट हाफ साइकिल माइनस है, जितना चार्ज इधर गया हाफ साइकिल में उतना रिटर्न आ जाता है वापस। तो एवरेज चार्ज क्रॉसिंग इज, नेट चार्ज क्रॉसिंग नहीं क्रॉस सकती, नेट 0 इन 1 टाइम पीरियड, देयरफॉर करंट इज 0, एवरेज करंट इज 0। जब चार्ज ही सारा वापस आ गया क्रॉस सेक्शन से, तो नन ऑफ द चार्ज हैज क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, तो नो करंट, नो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सिंपल लॉजिक। ठीक है,
तो बट उसको ऐसे हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। तो वट एवर इज आस्क्ड फॉर हाफ साइकिल, तो ऐसे प्रूव कर लो। फुल साइकिल के लिए और छोटा डेरिवेशन है, ऐसे भी कर सकते हैं, बस लिमिट चेंज करके यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। तो दिस इज योर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। Any difficulty in this? But this is for sinusoidal current and cosine current, दोनों के लिए। Other type of currents may have different average value, जो कि अपने कोर्स में नहीं है। अच्छा ये बताओ, चलो डोंट राइट, ये बताइए इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। सपोज कोई ऐसा एसी दे दिया आपको रेक्टेंगुलर टाइप, दोनों इक्वल एरिया है, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये आई और ये टी, तो ये 0 to t/2 और ये टी। तो हाफ टाइम तक, कैन यू सी दिस, एक मिनट जस्ट लेट मी, ये हो गया था ये वाला। इसमें देखो हाफ, ये t/2 है, तो ये एरिया है, ओके, ये एरिया आई टोल्ड यू इसके बराबर है। तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा एवरेज करंट 0 से t/2 तक, एवरेज करंट कितना होगा ये एम्पियर में। तो ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट में एवरेज वैल्यू सेम आ जाती है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। एवरेज वैल्यू जो है इसमें हम इजीली निकाल भी सकते हैं, इतने एरिया, एवरेज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज में क्या होगा, एरिया निकाल लो, 2 इंटू कितना टाइम बाई t/2, नीचे भी t/2, t/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कांस्टेंट में 2 ही रहेगा एवरेज करंट। चेंज किस में होता है, अगर अगर डिफरेंट किस में आता है, ऐसे एसी में क्या ऐसा था, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही फिर डिक्रीज हो रही, बट कांस्टेंट है कोई चीज तो उसकी एवरेज वैल्यू सेम आएगी, 2 आ जाएगी, 2 एम्पियर ही रहेगी हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल की फिर से 0 हो जाएगी, जितना ये पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया। और इसमें एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ऐसा कोई तुम्हें एसी दिया हो ट्राइंगल शेप का, हाफ साइकिल के लिए या फुल, इसमें ऐसा दिया, इसमें निगेटिव में जा ही नहीं रहा है ना, यहीं से साइकिल रिपीट हो रही है, फुल साइकिल हो जाएगा, फिर यहाँ से साइकिल रिपीट हो रही। इसमें एवरेज वैल्यू, इसमें लीनियर रिलेशन में हमेशा एवरेज वैल्यू, सपोज ये 10 है और ये 0 है एम्पियर, ये आई है, ठीक है। तो इसमें एवरेज वैल्यू वही आई इज इक्वल टू फुल, अभी फुल साइकिल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ तक, है ना, क्योंकि रिपीट हो रही ना, सेम साइकिल रिपीट हो रही, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 0 to t के लिए चार्ज अपॉन करंट, नहीं चार्ज अपॉन टाइम, ये चार्ज कितना होगा, एरिया निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस तो टी है, हाइट 10 है, ये भी टी है, तो 5 आ जाएगी। तो लीनियर रिलेशन में क्या करो, 0 प्लस लीनियर रिलेशन में हमेशा 0 फर्स्ट वैल्यू और कहाँ तक 10 है सेकेंड वैल्यू, प्लस कर दी डिवाइड बाई 2, I1 प्लस I2/2। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो उससे गो बैक टू द बेसिक्स एंड ट्राई टू डू इट, बट अपने कोर्स में साइनोसाइडल है, so that is the standard value you have to remember for numericals also. Clear? So now, similarly, current
जैसा करंट के लिए किया हम लोगों ने, can't we do it for EMF? Yes, same result will be for EMF also. EMF के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एक डेरिवेशन वन वी आर डन इट, तो यू कैन जस्ट रिपीट फॉर द अदर थिंग्स. तो सिमिलरली एवरेज वैल्यू फॉर EMF और वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज की बात हो रही है, फॉर साइनोसाइडल वोल्टेज विल बी सेम. यहाँ पर करंट हट के वोल्टेज आ जाएगा, एवरेज वोल्टेज, यहाँ पे पीक वोल्टेज आ जाएगा. अगेन इट विल बी इक्वल टू सेम डिजिट 0.63. एवरेज वोल्टेज for half cycle for sinusoidal AC will be 0.63 times of peak voltage, 60 close to 63% of peak. And full cycle के लिए average voltage will be 0 क्योंकि half positive है half negative है. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं. अगर डेरिवेशन आ भी जाता है तो जैसे ऊपर किया सिंबल चेंज करके कर लो. एनी डिफिकल्टी सो फार बोलिए. थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है इसमें, मैथमेटिकल, बट दैट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएंगे. यू विल नॉट फॉरगेट दिस. ओनली थिंग कीप लिसनिंग द पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू एंड रिमेंबर इट. ठीक है. तो साइनोसाइडल करंट में एवरेज करंट एंड एवरेज EMF फॉर हाफ साइकिल इज 2/π टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू, है ना. जो पीक वैल्यू है करंट या वोल्टेज की, उसका 2/π टाइम्स विच इज इक्वल टू, विच इज अबाउट 0.63, क्लोज टू 0.63 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू. और फुल साइकिल के लिए 0 है, whether it is करंट और वोल्टेज, है ना. और इक्वेशन सिंपल टू लर्न, इजी टू लर्न, साइन फंक्शन है करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए, एंड इट इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम. इसका आंसर क्या होगा बोलो. फाइंड एवरेज EMF फॉर शेडेड पार्ट. यहाँ पे क्या लिखा है, शेडेड लिखा हुआ है ना. वर्ड यूज इज शेडेड. ये वाला पार्ट ये शेड कर दिया हमने. ठीक है, शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ. बोलिए क्या आंसर होगा. क्विक आंसर. हाफ साइकिल का भी शेड किया हमने, तो हाफ साइकिल का फॉर्मूला क्या है. ओके, डू इट इन होमवर्क. इसको होमवर्क में कर लो. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दिस वाज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. CBSE बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये. नोटेड. आर यू देयर. तुम लोग हो लाइन पर. Yes, sir. तो केवल शेडेड पार्ट का. अगर मैं इसको भी शेड कर दूं तो, दोनों शेड कर दूं तब क्या होगा, ये भी और ये भी, तब तो 0. 0 ही हो जाएगा. तब तो 0 ही हो जाएगा. 0. बट आधा, बट हाफ के लिए निकालना. तो अभी जो फार्मूला सीखा उसको अप्लाई कर दो, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा केयरफुली. ठीक है, ओके. वोल्टेज वोल्ट में आएगा बिकॉज इट इज EMF और वोल्टेज. देखो नाउ एवरेज वैल्यू जो होती है वो 1 साइकिल के लिए 0 हो जाती है. तो देयरफॉर देयर इज वन मोर करंट डिफाइंड which will not be 0 for full cycle.
फुल साइकिल और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 0 नहीं होगा, तो वी डिफाइन अनदर करंट कॉल्ड आरएमएस करंट। जैसे हम लोगों ने आरएमएस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर। उसको स्क्वायर करेंगे करंट को, और उसको मीन टाइम से डिवाइड करके मीन निकालेंगे और उसका रूट ले लेंगे, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर करना है, मीन निकालना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। करंट के फंक्शन को 3 प्रोसेस करेंगे, और जो भी करंट, जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? आरएमएस करंट। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल करंट और इफेक्टिव करंट। Effective current is generally used most of the time, effective RRM, but some books write some convention कि भाई इसको वर्चुअल करंट भी बोला जाता है। वर्चुअल का वैसे मीनिंग होता है इमेजिनरी, बट इट इज नॉट इमेजिनरी, इट इज रियल करंट। इसका इफेक्ट में दिखता है, हम लोग यूज कर रहे हैं इसको डेली लाइफ में। एनीवे, तो दिस टू आर द नेम, सेम नेम्स, आरएमएस, इफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज वर्चुअल, ठीक है। तो सिंबल क्या है? IRMS सिंबल लेंगे, बट टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैपिटल आई लिया अपनी, in our textbook, but we'll take IRMS symbol because I we are taken for instantaneous। instantaneous के लिए small I लिया, और इन्होंने कैपिटल I लिया RMS के लिए, but we'll continue to write सबस्क्रिप्ट में RMS थोड़ा सा, to avoid any confusion। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट बेस्ड डेफिनेशन है ना। सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। अच्छा, एसी का सिंबल ये होता है, यू नो, डीसी का सिंबल, व्हाट इज द सिंबल फॉर डीसी? डीसी का तो ऐसे लिखते हैं बैटरी का। एसी का साइनसॉइडल वेव है, तो ऐसा सिंबल लिया जाता है। एसी का है, ये डीसी का है ना। तो यहाँ पे देखो हमने एसी लगाई, एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 फुल वेव। फुल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेव है ऐसा। तो हमने एसी लगा दी रेजिस्टेंस में, और एक वन टाइम पीरियड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो वो नोट कर लिया। फिर यहाँ पे हमने डीसी लगा दी, वेरिएबल बैटरी की, वेरिएबल वोल्टेज की, और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया, और सेम टाइम ड्यूरेशन में जी। इसका कितना था? 1 टाइम पीरियड और मोर टाइम पीरियड, है ना। एक जो भी है, सपोज यहाँ पे तुमने 10 मिनट्स में चेक किया, हीट प्रोड्यूस हुई है, तो इसमें कितना कांस्टेंट करंट मेंटेन करें कि सेम हीट 10 मिनट्स में सेम हीट एच प्रोड्यूस हो। तो ये जो डीसी कांस्टेंट करंट भेजेगा, वो इस एसी का, ये जो एसी में जो करंट जा रहा है, उसके आरएमएस करंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा? आरएमएस करंट ऑफ इन एसी इज दैट कांस्टेंट करंट which will produce same heat in same resistor। ये यहाँ भी फिट करना है। for same time period, for same time interval as done by DC। DC जो प्रोड्यूस कर रहा है हीट, AC भी उतना ही करे सेम टाइम पीरियड के लिए। as done by AC कर लो। AC जितना प्रोड्यूस कर रहा है, DC भी उतना ही प्रोड्यूस करे सेम रेजिस्टेंस में, सेम टाइम पीरियड में। तो जिसका जो करंट फ्लो हो रहा होगा, that will be called RMS current of, that will be equal to RMS current of this AC। So that's how the definition goes। कि आया समझ में कुछ? बोलो। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर लो अपना, एक रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है। डोंट डू इट बिकॉज रिस्की होता है AC 220 वोल्ट। तो इमेजिन करो 220 वोल्ट में तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और हीट टाइम, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में देखो कितनी हीट प्रोड्यूस की, वो नोट कर लो। फिर एक बैटरी लाओ, और उसमें मीटर वगैरह लगा लो। वेरिएबल, मतलब वेरिएबल बैटरी होनी चाहिए, वोल्टेज अगर हमें बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ा सकते हैं।
सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और सेम टाइम पीरियड में सेम हीट जो प्रोड्यूस करेगा करंट वो एसी का गिवन एसी का आरएमएस करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो उसकी हीट बेस्ड डेफिनेशन है कि सेम हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए जितना एसी प्रोड्यूस कर रहा है। कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट करंट होगा क्योंकि सेम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम टाइम इंटरवल में। वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विल बी कॉल्ड आरएमएस करंट ऑफ गिवन एसी, है ना। बट मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करना है तो हमें ये मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज कई सारे करंट दिए, जैसे हमने उसमें आरएमएस वेलोसिटी में निकालते, कई वेलोसिटी दी है, सब वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो, एन से डिवाइड कर दो, अंडर रूट ले लो तो आरएमएस करंट बनता है। ऐसे इसमें सपोज आपको 5 करंट दे दिए, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5, इतने करंट हैं किसी सर्किट में, है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे, अलग अलग करंट तुमने नोट किए, तो सबका आरएमएस करंट कितना होगा, सबको स्क्वायर करो, ऐड करो, जितने करंट है उसको डिवाइड करो, आरएमएस करंट मिल जाएगा। और यहाँ तो कंटिन्यूअस करंट है, फंक्शन है हमें करंट का, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, करंट के फंक्शन को क्या किया, स्क्वायर कर दिया, उसका टाइम से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी टाइम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, तो मीन हो गया, फिर सबका अंडर रूट ले लिया, तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। दिस इज द फार्मूला फॉर आरएमएस करंट विच वी आर गोइंग टू यूज। ये थोड़ा इजी है, देखो, प्रूव दैट आरएमएस करंट of sinusoidal AC is given by IRMS is equal to IM by √2। पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस करंट मिल जाता है हमें फॉर वन कंप्लीट साइकिल। देखो यहाँ पे जीरो नहीं है बिकॉज हीट बेस है, चार्जेस इधर जा रहे हैं किसी वायर में या किसी रेजिस्टर में तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी, चार्जेस रिवर्स जा रहे हैं तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए जीरो नहीं होगा, हीट जीरो नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि चार्जेस जब इधर गए तो हीट प्रोड्यूस हुई, चार्जेस अपोजिट गए तो कोल्ड कोल्ड हो गया, रेफ्रिजरेटर बन गया, वो पहले हीटर था बाद में रेफ्रिजरेटर, ऐसा नहीं होता। चार्ज किसी कंडक्टर में लेफ्ट जा रहे तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी, राइट जा रहे तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी, तो दोनों केसेस में हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए कंप्लीट साइकिल में जीरो नहीं होने वाला ये। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ ये वाला, यहाँ पर आरएमएस करंट निकालना है 0 से t तक, करंट को स्क्वायर किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, स्मॉल टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते और जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए उससे डिवाइड करते। तो ये क्या मिल गया, देखो साइन स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे देखो आई एम तो बाहर निकाल लो, स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या है ये, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर फंक्शन ऑफ साइन, दैट इज हाफ। हमने 4 वैल्यूज लिखी थी, सिंगल पावर के लिए तो 0 थी, स्क्वायर के लिए हाफ थी, चाहे वो साइन फंक्शन हो चाहे वो कोसाइन फंक्शन हो, तो इसकी पूरे की वैल्यू, अच्छा ये अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट तो रहेगा ही, और इस फुल की वैल्यू हाफ रहेगी इस पूरे टर्म की। तो ये क्या क्या मिल गया रिजल्ट, आई एम डिवाइड बाई √2, 1/√2 की वैल्यू आती है, रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर आएगा 1.414, नीचे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 0.707 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो 0.707 टाइम्स ऑफ द पीक करंट, और अगर हमें पीक करंट निकालना तो √2 को इधर भेज दो, तो IRMS को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पीक करंट मिल जाता है, और डिवाइड कर दो तो RMS करंट मिलता है। ठीक है, ये दोनों RMS करंट पूछेंगे तो पीक करंट का 1/√2 टाइम्स कर दो विच इज 0.707, और पीक करंट है तो RMS करंट का √2 टाइम्स कर दो, यही रिलेशन, इससे ये भी आ गया, इससे ये भी आ गया, तो देखो नियरली 0.7 टाइम्स है ना, 0.7, तो आप पीक करंट यहाँ कहीं पे आएगा। एवरेज करंट कम था, हाफ साइकिल के लिए था, लेकिन वो 0.63 टाइम्स है, एवरेज की लाइन थोड़ी और नीचे आ जाएगी,
ये 0.7 है तो थोड़ी ऊपर रहेगी, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, और ये रिजल्ट वोल्टेज के लिए भी वैलिड रहेंगे। अगर हम वोल्टेज की बात करें या ईएमएफ की बात करें तो उसमें भी 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू हो जाएगा। तो आरएमएस वोल्टेज इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज, और पीक वोल्टेज इज, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस। तो कौन छोटा है? आरएमएस छोटा है पीक से। पीक इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, आरएमएस इज रफली 0.7 times of peak current, which in fact is 1/√2। तो जो इंडियन सप्लाई है 220 वोल्ट, तो वो कौन सा वोल्टेज हुआ बताओ? जो हम वोल्टेज लिखते हैं 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट, तो वो क्या है? एवरेज वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है कि पीक वोल्टेज है? तीनों में से कौन सा हो सकता है बताओ? ठीक है, ये देख लो पहले, फिर मैं नोट्स देख के फिर रोक देता हूँ वहीं पर। जस्ट देखो, दिस वाज द आरएमएस करंट की डेफिनेशन थी, ऊपर देखो, और फिर हमने कैलकुलेट भी किया। Can you see? थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको। हम्म। तो ये रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन आ गया तो वो भी कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसकी पूरे की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू √1/2 आएगी। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? आरएमएस करंट कितना है? √2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इंडियन सप्लाई इज 220 वोल्ट, इज इट पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू? एवरेज वैल्यू तो नहीं हो सकती, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है। तो आइदर इट इज पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो नोट्स में देखो, जस्ट आई विल गिव यू 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड देन वाइंड अप। जस्ट देख लो इसको, ये हो गया इतना। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हें काम आते रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। देखो, ये यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। चलो, some important points about the AC supply. Sinusoidal AC, I mean Indian domestic supply is 220 volt 50 hertz sinusoidal AC। ये sinusoidal AC है अपनी इंडिया की सप्लाई। दिस इज, ये वैल्यू क्या है? दिस 220 वोल्ट इज आरएमएस वोल्टेज। ये आरएमएस वोल्टेज है, 220 वोल्ट जो है ना, आरएमएस, इट इज आरएमएस वोल्टेज। इट्स पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इट इज अबाउट 311 वोल्ट। पीक वैल्यू गोज टू 311। जब तुम एसी को टच करोगे 220 वोल्ट को, तुम्हें शॉक मिलेंगे 311 वोल्ट के। 220 वोल्ट के शॉक नहीं लगेंगे, कितना? 311 वोल्ट का शॉक लगेगा। एक सेकंड में 100 बार, बिकॉज क्या है, एक 50 साइकिल्स है, 50 साइकिल्स में 50 बार 50 टाइम्स इट विल बी पॉजिटिव पीक और 50 टाइम्स नेगेटिव पीक। ऐसे रहता है, एक साइकिल में कितने, 2 बार पीक वैल्यू पे जाएगा, 2 बार 0 वैल्यू पे जाएगा। ये 311, ये नीचे 311 माइनस में, नीचे -300, माइनस मीन अपोज, मतलब पोलरिटी चेंज हो रही, बॉडी को थोड़ी पता लगेगा, है ना? बीच में 0 भी होगा तो क्वाइट फास्ट है ना। तो 220 की जगह 311 का शॉक लगेगा इफ यू हैव टू टच दिस लाइव वायर। गॉट इट? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। एसी वोल्ट मीटर एंड एसीएम मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यूज। मतलब अगर उन्होंने बोला एसी वोल्टेज जो है, एसी वोल्ट मीटर 220 रीड कर रहा है, अगर तुम वोल्ट मीटर लगाओगे अभी अपनी इंडियन सप्लाई में, है ना, जो
पिन होती है, पिन में एक लाइव होगी वायर, एक न्यूट्रल होगी, उसमें जिसमें प्लग डालते हैं चार्जर के लिए, है ना। तो उसमें अगर तुम वोल्ट मीटर के 2 पॉइंट डालो, 2 टर्मिनल, तो 220 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो एसी वोल्टेज एंड एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यूज ऑलवेज। तो उसमें अगर रीड दिया है कि एसी वोल्ट मीटर इतना रीड करना है, तो यू डोंट हैव टू आस्क सर ये पीक वैल्यू है क्या, नहीं, दैट विल बी आरएमएस वैल्यू ओनली। एसी वोल्ट मीटर अपने कोर्स में नहीं है, हमने जो वोल्ट मीटर पढ़ा था वो डीसी वाला था, मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ये दोनों, वो डीसी पढ़े हम लोगों ने। एसी वोल्ट मीटर एंड एसी मीटर हीट बेस होते हैं, हीट से काम करते हो, हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने डीसी वोल्ट लगा दिया एसी में, अगर तुम डीसी वोल्ट मीटर लगाओ एसी में तो 0 दिखाएगा, बिकॉज नेट टॉर्क विल बी 0। अगर हमने डीसी कनेक्ट कर दिया एसी के साथ तो उसमें टॉर्क 0 दिखाएगा, बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार या 100 बार पीक वैल्यू पे पहुंच रही है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो टॉर्क, नेट टॉर्क विल बी 0, पॉइंटर उसका डिफ्लेक्टिव नहीं होगा जब डीसीएम में लगा दिया एसी में, इट विल नॉट रीड एनी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, एक क्वेश्चन भी आया था जे में, डीसी वोल्ट मीटर connected to AC will read 0 since net torque is equal to 0. नेट टॉर्क ऑन द पॉइंट, उसके पॉइंटर के ऊपर नेट टॉर्क 0 लगेगा। पॉइंटर किसके साथ कनेक्टेड है, कॉइल के साथ, तो कॉइल के ऊपर नेट टॉर्क विल बी 0। फ्लक्चुएट नहीं करेगा 1 सेकंड में 50 बार, 50 फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन इतना पॉसिबल नहीं, जब तक वो मूव करने की कोशिश करेगा तब तक पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इनर्शिया से वो मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 0 ही दिखाएगा वो। क्लियर, ये क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारी टेक्स्ट बुक का है आज जो पढ़ा हम लोगों ने। 7.2 पीक वोल्टेज ऑफ एसी इज गिवन 300, आरएमएस वोल्टेज निकालना है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करो तो 0.707, और आरएमएस वोल्टेज ऑफ करंट ऑफ एन एसी सर्किट, आरएमएस दिया है तो पीक निकालना है, तो √2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। आरएमएस दिया है तो पीक निकालने के लिए √2 टाइम, ठीक है। कॉमन सेंस भी लगाना है, ऐसा नहीं करना, देखो इधर 0.70 से आरएमएस निकालना तो इधर से या इसको नीचे ले आओ, पीक निकाल, ऐसा मत करना। IRMS डिवाइड बाय 0.707 कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको √2 को इधर ले आओ, इसलिए मैंने ये लिखा। 1.414 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डिवाइड मत करना। ठीक है, दैट्स ऑल। So these are the important points which will help you during numerical. एक पॉइंट और सुन लो, हमेशा दिया होगा सप्लाई दैट बल्ब इज कनेक्टेड या रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड या इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई या 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये सब जो सप्लाई होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, तो दे विल नॉट बी गिविंग यू आरएमएस सप्लाई एवरी टाइम। सप्लाइड वोल्टेज विल बी और अप्लाइड वोल्टेज विल बी आरएमएस वैल्यू, और पीक वैल्यू अगर होगा तो लिख के देंगे आपको, जैसे यहाँ पे दिया है ना पीक वोल्टेज, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर सप्लाई वोल्टेज कर दिया तो वो आरएमएस, सप्लाई वोल्टेज विल बी आरएमएस, तो आरएमएस के सामने लिखते नहीं जनरली, सप्लाइड वोल्टेज लिख देंगे। पीक वोल्टेज अगर है तो मेंशन करेंगे, पीक वोल्टेज इज सो एंड सो। दिस पॉइंट आल्सो you have to keep it in mind. Supplied voltage will be RMS voltage. If it is peak is given, then they will mention it is you take it peak voltage, जैसे इसमें दिया ही होना। Otherwise, supplied voltage has to be RMS voltage. All right, end कर दो यहाँ पर। तो tomorrow very important points will be coming up. आज की याद कर लेना सारे पॉइंट, नहीं तो फिर एसी में प्रॉब्लम आती। ठीक है, आरएमएस के याद करके रखो, खास तौर से वही यूज होंगे।
RMS वोल्टेज का रिलेशन एंड इंस्टेंटेनियस करंट का। एक मिनट, दिस इज आल्सो गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगर टाइम है तो इसका भी स्नैपशॉट लो, particularly those who are going for competitive examination, इसको भी लिखो साथ में। चलो, तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आज जो सीखा है सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इफ यू डू दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, एक मिनट। ये भी एक क्वेश्चन साथ में। Anybody has any doubt? Some of the students लॉग आउट हो गए पहले से ही है, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, मजबूरी में क्लास अटेंड करते सुबह को, वेस्टिंग द मनी ऑफ पेरेंट्स। इंपॉर्टेंट क्लास चालू है, लॉग्ड आउट। सम 4 स्टूडेंट्स आर मिसिंग। किसी को डाउट है? No, sir. बोले कुछ पूछना है? नहीं, 4 नहीं, 2 आर शॉर्ट, 2 लोग लॉग आउट हो गए। चलो, ओके, एंडिंग नाउ, थैंक यू। Thank you, sir.